ذکیہ مشہدی۔ ماں۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہڈیوں کے آر پار ہو گیا۔ کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا تھا، اس پر مہاوٹیں بھی برسنے لگی۔ پتلی ساڑی کو شانوں کے گرد کس کر لپیٹے ہوئے منی کو خیال آیا کہ اوسارے میں ٹاپے کے نیچے اس کی چاروں مرغیاں جو دبک کر بیٹھی ہوں گی، ان پر ٹاپے کے سانکوں سے پھوار پڑ رہی ہوگی۔ بیمار پڑ کر مر گئیں تو دوبارہ خریدنا بہت مشکل ہوگا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے ٹٹر ہٹایا اور باہر آ گئی۔ بارش نے جیسے ہر طرف باریک ململ کا پردہ ڈال رکھا تھا۔ سورج پہلے ہی کئی دن سے نہیں نکلا تھا، اس پر یہ چادر۔ پھر اسے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ دن، تاریخ، مہینے تو ویسے بھی اسے کم ہی یاد رہا کرتے تھے، اب صبح شام بھی بھول چلی تھی کیا؟ اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ سورج نکلا بھی ہوتا تو کیا اب تک بیٹھا رہتا؟ رات تو آ ہی گئی تھی۔ ہاں، پہلے ہی پہر ایسی اندھیری اور اداس نہ ہوتی شاید۔ اس نے ٹاپا اٹھا کر مرغیوں کو دبوچا۔ ڈرے سہمے پرندوں نے کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں کی۔ بازو میں چاروں مرغیاں اور بغل میں ٹاپا دبا کر وہ مڑ ہی رہی تھی کہ اچانک دور پھوار اور اندھیرے کے دوہرے پردے کے پیچھے سے کوئی ہیولا ابھرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ایک چنگاری سی بھی چمکی۔ ذرا سی دیر کو اسے لگا اگیا بھوتال ہے، لیکن اگیا بھوتال ہندو ہوا تو مرگھٹ میں اور مسلمان ہوا تو قبرستان میں۔ آنکھیں مٹکاتا، لوگوں کو راستہ بھلاتا گھومتا ہے۔ زندوں کی بستی میں اس کا کیا کام؟ وہاں اپنے اگیا بھوتال بہتیرے ہیں۔ منی ڈری نہیں اور ڈرتی وہ تھی بھی نہیں۔ رات کے سناٹے میں ہر ہر کرتی گنگا کے درمیان پھیلے پڑے دیہرا کے اس علاقے میں وہ تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ اور لوگ رہتے تو تھے لیکن جھوپڑیاں دور دور تھیں۔ درمیان میں کھیت تھے یا سبزیوں کے وسیع و عریض قطعے۔ شام پڑے سیار ہواں ہواں کرتے۔ مرغیوں کے فراق میں لومڑیاں دروازے پر خسر پسر کرتیں۔ کبھی آنگن میں لگے امرود کے درخت سے سلسل کرتا ہرا ہرا سانپ رسی کی طرح نیچے لٹک آتا اور گردن اٹھا کر اپنی ننھی ننھی چمکیلی بس بھری آنکھیں منی کی آنکھوں میں ڈال کر اسے گھورتا، لیکن ڈرانے میں کامیاب نہ ہوتا۔ وہ پاس پڑی لکڑی اٹھا کر اسے دھمکاتی۔ ارے اب کیا لے جائے گا رے؟ ہرسیا سے زیادہ زہر ہے کیا تجھ میں؟ منی کے حساب سے اس کا 8 سالہ پولیو زدہ لڑکا اور 5 سال کی دونوں جڑواں مریل لڑکیاں سانپ کے کسی کام کے نہ تھے۔ تینوں بچوں کو چوزوں کی طرح پروں تلے دبا کے وہ بڑی طمانیت سے اپنی اور ان کی روزی روٹی کی فکر میں غلطاں گھومتی رہتی۔ صبح 4 بجے تڑکے جب سورج نکلا بھی نہ ہوتا اور گرمیوں میں سرکتی رات کے ملگجے اندھیرے یا جاڑوں میں کوہرے کی دبیس چادر میں لپٹی گنگا سوئی ہوئی ہوتی، مچھوارے اپنا اپنا جال نکالتے تھے اور ان کی ناویں تڑپتی مچھلیوں سے بھر جایا کرتی تھیں، تب اور لوگوں کے ساتھ منی بھی اپنا ٹوکرا لیے پہنچتی اور مچھلیاں بھر کر حساب چکتا کرتے 8 بجتے بجتے پار جانے والی ناؤ پکڑ کر شہر پہنچ جاتی۔ سر پر ٹوکرا اٹھائے محلے محلے مچھلی بیچ کر کوئی 2-2:30 بجے تک لوٹ آتی۔ راستے سے ضرورت کا سودا سلف بھی اٹھا لیتی۔ کبھی کبھی ایک آدھ مچھلی بچ جایا کرتی تھی، منافع ہو نہ ہو جمع نکل آئے، یہ سوچ کر وہ اکثر بچی ہوئی مچھلی بہت کم داموں میں ہرسیا کو بیچ دیا کرتی تھی۔ گھاٹ سے اترتے ہی ہرسیا کا چائے کا کھوکا تھا، وہ آتے جاتے اسے چھیڑتا، مفت کی چائے آفر کرتا، لیکن مچھلی کے دام اس نے کبھی پورے نہیں لگائے۔ جانتا تھا مچھلی ٹکنے والی چیز نہیں اور منی جیسے غریب بیوپاری میں نقصان اٹھانے کا بوتا نہیں ہوتا۔ چائے کے کھوکے کی آڑ میں کچی کے ساتھ تلی مچھلی بیچنے والا وہ ان پڑھ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے بزنس ایگزیکٹو سے کم سیانہ نہ تھا۔ منی ذات کی ملاح نہیں تھی، لیکن پچھلے 12-13 سال سے دیرہ میں اپنی اسی جھوپڑی میں رہنے اور شوہر کے موٹر بوٹ چلانے کے پیشے کی وجہ سے وہ گنگا اور گنگا میں بسی مچھلیوں کے علاوہ اور کسی چیز کو نہیں جانتی تھی۔ 15ویں برس میں وہ بیاہ کر یہاں آئی تھی۔ اسے گنگا ماں سے پہلی ہی بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ ان کے آنچل میں رہنے کو ملے گا یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اب تو روزی روٹی کا ذریعہ بھی گنگا ماں ہی تھی۔ ادھر اس نے بڑی مشکل سے کچھ پیسے بچا کر مرغیاں خریدی تھیں کہ بچوں کو انڈے کھلا سکے۔ اس کا پہلوٹی کا لڑکا صرف اس لیے مر گیا تھا کہ اسے دوا کے ساتھ اچھی غذا بھی چاہیے تھی۔ اس کی یاد آتی تو کلیجے میں ہوک اٹھتی۔ شادی کے پہلے سال ہی پیدا ہو گیا تھا، زندہ ہوتا تو آج کتنا بڑا سہارا ہوتا 11-12 برس کا وہ بیٹا۔ سرد ہوا کے برمے نے ہڈیوں میں چھید بنائے۔ منی کو محسوس ہوا جیسے اسے بخار چڑھ رہا ہو، لیکن تجسس ٹھنڈ پر حاوی ہو گیا۔
इस सनसन करते देहरा में जहां गंगा को छू कर आती यख बस्ता हवाओं के बीच सियार भी हुआ भूल कर मांदों में दुबक गए थे। ये कौन था जो लंबे लंबे डग भरता चला आ रहा था? एक चिंगारी फिर छूटी। मुन्नी, ओ मुन्नी! करीब आती रोशनी ने उसका नाम लेकर पुकारा। वो हड़बड़ा गई। सर्दी, बगल में दबे टापे और दूसरे बाजू में सिमटी मुर्गियों को यकसर भूलकर वो बाहर निकल आई और उन्हें देखकर हक्का बक्का रह गई। आप इस वक्त यहाँ? अंदर आ जाइए मालिक, बड़ी ठंड है। लांबे कद और दुबले पतले जिस्म पर उन्होंने हस्बे दस्तूर धोती लपेट रखी थी। हाँ, पतले कुर्ते की जगह गाढ़े की मोटी पूरी आस्तीनों वाली कमीज थी और सर पर अंगोछा लिपटा था। बस यही उनकी जड़ावल थी और गांव में इससे ज़्यादा जड़ावल बहुत से लोगों के पास नहीं थी। उसारे में रात काटने की इजाज़त चाहिए मुन्नी, सुबह निकल लूँगा। वो मुस्कुराए, लेकिन आवाज़ में मुस्कुराहट की नहीं बल्कि बचते दांतों की आहट थी। अंदर आ जाइए मालिक, अंदर। वो ज़रा सा हिचकिचाए। हाँ मालिक, यहाँ उसारे में तो बड़ी हवा है। वो पीछे पीछे चल पड़े तो मुन्नी को महसूस हुआ उसके घर में फरिश्तों के कदम उतरे हैं, या गंगा माँ एक इंसान की शक्ल इख्तियार करके उसकी झोंपड़ी में आन उतरी हैं। ज़हे नसीब, उसने टापा एक कोने में रख कर मुर्गियों को जल्दी जल्दी उसके नीचे धकेला और बोरी से अमरूद की खुश्क टहनियाँ, पत्ते और कुछ उपले निकालने लगी। कुछ और मत करो मुन्नी, बस रात के लिए छत चाहिए थी, अब और नहीं चला जा रहा था। वो बेहद थके हुए लग रहे थे। उन्होंने कंधे से लटका हुआ झोला उतारा, टॉर्च उसमें रखी और वहीं मिट्टी के फर्श पर कटे दरख्त से धप से बैठ गए। आप कुछ मत बोलिए, मुन्नी का जी भराया। हमारे पास जो है वही तो दे सकेंगे, न उससे कम न उससे ज़्यादा। उसने इतनी सादगी से कहा कि वो खामोश हो गए। मालिक, कपड़े भीग गए हैं। कुछ ढूंढते ढूंढते ही उसने कहा। उसकी पुश्त उनकी तरफ थी। मुन्नी के पास कपड़े कहाँ होंगे जो वो बदल सकें, इसलिए उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी। हालांकि उस वक्त खुश्क कपड़ों, खुश्क जिस्म और हवा से महफूज खुश्क जगह से ज़्यादा ऐसा कुछ न था जिसे जन्नत का नाम दिया जा सके। हर शख्स की जन्नत उसकी अपनी होती है और मौका महल के एतबार से होती है शायद। मेरे पास मेरे पति की एक धोती रखी हुई है, उनकी खामोशी का मतलब भांप कर उसने कहा। तब तो ठीक है, सुबह तक मेरे कपड़े सूख गए तो उसे छोड़ जाऊंगा। उन्होंने रजामंदी जाहिर की। मुन्नी खुश हो गई। उसने घर के वाहिद कमरे की कार्निस पर रखा टीन का बक्सा उतारा। यह बक्सा उसका शौहर पटना के सोमवारी मेले से लाया था और उसमें रख कर लाया था उसके लिए लाल फूलों वाली साड़ी। मुन्नी अब लाल फूलों वाली साड़ी नहीं पहनती थी। उसे शौहर की वाहिद धोती के साथ संभाल कर रख दिया था। उसे तो वही पहनेगी। लंगड़े से शादी करने की हिम्मत करने वाली उसकी बहू, वही उसकी असल हकदार होगी। उसने जल्दी से धोती निकाली, मबादा वो अपना इरादा बदल दें। धोती उन्हें थमा कर वो फिर अंदर चली गई। गीले कपड़े उतार कर उन्होंने अलग रखे। खुश्क धोती आधी बांधकर आधी को ऊपर के जिस्म पर ओढ़ लिया। अब वो एक बौद्ध भिक्षु जैसे नजर आ रहे होंगे, सोचकर उनके लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट उभर आई। गाढ़े की धोती ने बड़ी राहत पहुंचाई। गीले कपड़ों से निजात पाकर उसे पहनने का सुख अल्फाज से परे था। खुदा इस नेक दिल औरत का भला करे, उन्होंने दिल ही दिल में दुआ की। दुआ तो उनके झोले में सबके लिए थी और मोहब्बत भी, लेकिन न सबका पेट भर पाता, न बीमारियां दूर होती, न मुन्नी के शौहर की वापसी हो पाती जिसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी, किसी की इस मुखबरी पर कि वो नेपाल से कत्थे की स्मगलिंग में शामिल है। वापसी तो बड़ी बात, 5.5 साल का तवील वक्फा गुजर जाने के बाद ये तक पता नहीं चला था कि वो कहाँ है, किस हाल में है भी या नहीं है। मुन्नी कभी भूल सकती है क्या कि उन्होंने किस तरह साल 1.5 साल तक उसके शौहर का पता लगाने और उसे छुड़वाने के लिए दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा था। आखिर मुन्नी ने ही उनसे हाथ जोड़कर कहा था, भगवान अब हमने सब्र कर लिया, आप भी छोड़ दीजिए। हमारे भाग्य में सुहाग होगा तो वो खुद आ जाएंगे। कहीं जो विधाता ने हमारा सिंदूर पोंछ दिया होगा तो कोई क्या करेगा। शौहर की गिरफ्तारी के पहले से ही उसका पैलोठी का बेटा बीमार रहा करता था। बाप के जाने के बाद घर पर जो मुसीबत आई उसमें उसकी बीमारी कहीं ज़्यादा बढ़ गई। तब मुन्नी उन्हें ज़्यादा नहीं जानती थी। एक दिन वो उसके दरवाजे पर आए। किसी ने उन्हें बताया कि इस घर में एक बीमार बच्चा है। बच्चे को देखकर वो कुछ फिक्रमंद हो गए। उसे डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन डॉक्टर सिर्फ बुध को मिलेंगे। उस दिन जुमा ही था। उस बच्चे को दवा के साथ ग़िज़ा की भी सख्त ज़रूरत थी। खाली दवा से कुछ ना होगा, उन्होंने तासुफ से सोचा था। इंतहाई कमज़ोर होते हुए बच्चे को गोद में लिए आंसू बहाती मुन्नी
उन दिनों 2 वक्त भर पेट खाना तक मुहैया नहीं करा पाती थी। जुड़वां बच्चियां उसके पेट में थीं। 8वां महीना ख़त्म हो रहा था। वो कोई काम न कर पाती, खुद उसे भरपूर ग़िज़ा की ज़रूरत थी, लेकिन वो दोनों बच्चों, ख़ास तौर पर पहलोटी के बीमार के लिए पागल बनी रहती। मुन्नी, मैं बुध को फिर आऊँगा, उन्होंने कहा। तुम्हारे बच्चे को अस्पताल ले जाने की सख्त ज़रूरत है। फिर उन्होंने कंधे से लटका झोला उतारा, वही झोला जो हमेशा उनके कंधे से लटका रहता था और आज भी लटका हुआ था। ये रखो। झोले में हाथ डालकर उन्होंने बत्तख के 4 अंडे बरामद किए और 6 अदद केले। ये तोहफे गाँव में 2 अलग अलग लोगों ने उन्हें दिए थे। वो सब के सब उन्होंने बच्चे को दे दिए। ये नेमतें देखकर उसके जर्द चेहरे और बुझती आंखों में जो चमक आई थी, उसे मुन्नी कभी नहीं भूल सकी। जब भी उसके जाने का गम सताता, वो मुसर्रत की उस चमक को याद करती तो दुखते दिल पर ठंडी ठंडी फुहार पड़ जाती। अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2 दिनों में उसका बच्चा बहुत खुश था। वो इस दुनिया से खुश खुश गया था। उसके पेट में खाना था, वो भी अच्छा खाना। बुध के दिन जब वो उसे लेने आए तो उसकी राख हवाएं उड़ा चुकी थी और नन्हा सा अजला जसद खाकी गंगा के पानियों में गुम हो चुका था। लेकिन मुन्नी ने उनके कदमों पर अपना सर रख दिया। उसने बड़े चाव से अंडे खाए, अपना हाथ बढ़ाकर एक केला छोटे को भी दिया। सब आपकी कृपा थी। वो भूखा जाता तो हम जितने दिन जिंदा रहते तड़पते रहते। उसके आंसुओं ने उनके पैर भिगो दिए। ऐसी सख्त गिरफ्त थी कि उनके लाख छुड़ाने पर भी वो उस वक्त तक नहीं उठी जब तक उसका दिल हल्का नहीं हो गया। तभी उन्हें मुन्नी के शौहर के बारे में पता चला था। कहीं से ये भी मालूम हुआ कि हर्षिया से किसी तकरार के सबब उसने उसके खिलाफ मुखबरी की थी। झूठी या सच्ची ये मालूम होना मुश्किल था। नेपाल से तेंदू की पत्तियों और कत्थे की स्मगलिंग बहुत आम थी। हो सकता है वो सिर्फ मोटर बोट चलाता रहा हो और उसे माल का इल्म न रहा हो सकता है मुलव्विस रहा हो। जो भी हो, वो एक बहुत ही छोटी मछली था जिसे बड़ी मछलियां निगल गई थी। इस सिलसिले में उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी, लेकिन मुन्नी एहसानमंद थी। किसी ने उसके बारे में सोचा तो, कुछ किया तो। उसके दूसरे बच्चे को पोलियो हो गया था। वही थे जो उसे अस्पताल ले गए, ऑपरेशन कराया। अस्पताल से उसे लोहे का जूता बनवा कर दिया गया जिसका फ्रेम घुटने तक था। वो लंगड़ाता अब भी था, लेकिन पहले से बहुत अच्छा हो गया था। पहले तो वो जिस तरह चलता था, उसे देखकर किसी करी सूरत फुदकने वाले जानवर की याद आती थी। मुन्नी का दिल डूब डूब जाता था। कई बार उसे ख्याल आता था कि ऊपर वाले को उसका बेटा लेना ही था तो इस टूटे फूटे को ले लिया होता। सही सालिम चला गया, ये रह गया। लेकिन फिर उनकी कोशिशों से अब वो इस लायक था कि अपने सारे काम आसानी से कर ले। जल्द ही वो उसे किसी दुकान में बिठाने की सोच रही थी। लड़का जब अस्पताल से लौटा था, उस वक्त भी मुन्नी ने उनके पैरों पर सर रख दिया था। शिर्क व कुफ्र उसकी लुगत में नहीं थे। होते भी तो उनके मानी उसके ज़ख़ीरे में नहीं थे। भगवान खुद उतर कर नहीं आते, किसी इंसान को भेज कर ही काम कराते हैं। वो जिसे भेजें वही उनका रूप। तसले में आग रोशन हो उठी थी। वो उसे उनके पास ले आई। फिर एक बड़े से टेढ़े मेढ़े अलमुनियम के कटोरे में 2 गिलास पानी, गुड़, आंगन में लगे तुलसी के पौधे से उतारी पत्तियां और 2-4 दाने काली मिर्च के डालकर उबालने को चढ़ा दिए। पानी खूब उबल गया तो उसने अलमुनियम के 2 गिलासों में चाय ढाली और अपना गिलास लेकर खुद भी वहीं बैठ गई। गंगा की रेत से मांझे गए अलमुनियम ने पस्ता कद मध्यम शोलों की रोशनी में चांदी की तरह लश्कारा मारा। मालिक बड़ा कारसाज है। मुन्नी की झोपड़ी रास्ते में न होती तो वो ठंड से अकड़ गए होते। उनके लिए तो इस वक्त फूस की सिर्फ एक छत काफ़ी थी। खाली पेट में तवानाई देता गुड़ और ठंडे जिस्म में गर्माहट भरती तुलसी और काली मिर्च की चरचराहट, एक एक घूंट अमृत था। जाके सो जाओ मुन्नी, रात बहुत हो चुकी है, उन्होंने नरमी से कहा। सब लोग आपके बारे में बहुत बातें करते हैं। कभी मन होता था हम आपके पास बैठें। मालूम है, और लोग क्या बातें करते हैं ये भी मालूम है। वो मुस्कुराए। क्या मालूम है? मैं सवालों के जवाब देते देते थक गया हूँ। फिर भी कोई ना कोई इंसान ऐसा मिल जाता है जो नए सिरे से सारा कुछ पूछने लगता है। तुम भी सब कुछ पूछना चाहती होगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कुंबा कहाँ है, गुजारा कैसे चलता है, यहाँ क्यों रहता हूँ, है ना? मुन्नी ने सादा लौही से सर हिलाया। वो हंस पड़े। चलो तुम भी सुन लो। मेरे माँ बाप अब नहीं रहे। जब मैं यहाँ आया था तब थे। भाई बहन हैं, दोस्त अहबाब हैं, लेकिन मैं उन सब को बहुत दूर छोड़ आया हूँ। उन्होंने कदरे तवक्कुफ किया। एक महबूबा भी थी, उम्मीदों के चिराग रोशन किए, मुस्तकबिल के ख्वाब देखती। मैंने उसकी दुनिया तहोबाला कर दी, उसे भी छोड़ाया। लेकिन ये उन्होंने मुन्नी से कहा नहीं और बात का सिरा फिर पकड़ा।
वो सब बारी बारी मुझे कुछ पैसे भेजते रहते हैं, उनसे मेरा गुजारा हो जाता है। दूसरों की मदद के लिए कुछ बचा लेता हूँ। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, फिर भी कभी भूखा नहीं सोता हूँ। तुम में से भी जिन लोगों के पास कुछ है वो मुझे देना चाहते हैं तो लेने से इनकार नहीं करता। कभी कोई ग्वाला 1 लोटा दूध थमा देता है तो कोई गृहस्थ किलो आध किलो सब्जी। वो तो आप दूसरों को बांट देते हैं। जो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा होता है या मुझे दरकार नहीं होता, बस वही। अब अभी तुम्हारी तुलसी की चाय की सख्त ज़रूरत थी, वो मैं किसी के साथ ना बांटता। उन्होंने बच्चों जैसी मासूम और शरीर मुस्कुराहट के साथ कहा। मुन्नी ने सर खुजाया। उनकी ज़रूरत से ज़्यादा उनके पास क्या होता है और कब होता है? अभी कोई आ जाए तो आधी चाय तो उसे पिला ही देंगे। आपका परिवार? मेरा परिवार तुम लोग हो। आसपास के चारों गांव मेरा परिवार है। बाल बच्चे पीछे छोड़ाए? मेरा कोई बाल बच्चा नहीं। औरत नहीं है, इसीलिए बाल बच्चा भी नहीं है। मगर इन गांव के जहां मैं काम करता हूं सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे बच्चे भी मुन्नी के तीनों बच्चे गुदड़ी में लिपटे गहरी नींद सो रहे थे। उसका जी भर आया। कुछ देर वो खामोश रही। बाहर हवा ज्यादा पागल हो उठी थी। किसी चुड़ैल की तरह सीटियां बजाती, हाय हाय करती, गंगा माँ की जुल्फों में लहरों के घुंघरू डालती। शरारत पर आमादा ठंडी यख हवा। बड़ी ठंड है, कहकर वो कुछ देर खामोश रही। उसने फिर आंखें उठाईं। तो आपने ब्याह किया ही नहीं? मुन्नी, आज तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो? आज ही तो आपके साथ बैठने का मौका मिला है मालिक। कितनी बार कहा मुझे मालिक कहकर मुखातिब न किया करो। वो कदरे झुंझला कर बोले। हाँ, मैंने ब्याह नहीं किया। जवाब दे ही दें, वरना ये बेवकूफ़ मछवारन दिमाग चाटती रहेगी। उनका लहजा मामूल के मुताबिक नर्म और पुरसुकून था। तो औरत का सुख उन्होंने कभी नहीं जाना, और न जाने कौन कौन से सुख नहीं जाने। बेवकूफ़ मछवारन ने सोचा। बांस के टट्टर की झोपड़ी में अकेले रहते हैं। एक पतीली में आलू और चावल साथ उबाल लेते हैं। अपनी थाली खुद मांजना, अपने कपड़े खुद धोना, साइकिल को खड़खड़ाते घूमते फिरते रहना। अपने देश में ज़रूर उनके पास मोटर होगी। सूरत से ही बड़े घर के मालूम होते हैं, लेकिन यहाँ सुना था एक बार अकेले पड़े बुखार में भुन रहे थे। संजोग से कोई उधर जा निकला। परले गांव के मुसलमानों के यहाँ का लड़का था। वो उन्हें उठा ले गया। सुना है उससे कहा कि मैं मर जाऊं तो कोई परपंच ना करना, जो कपड़े पहने हों उन्हीं में ले जाकर मेरी झोपड़ी में गाड़ देना। वहाँ एक कॉपी पड़ी मिलेगी, हो सके तो उसमें लिखे पते पर खबर करा देना, और बस। क्या उसके शौहर ने भी किसी को अपना पता दिया होगा? शौहर को याद करके उसके दिल में टीस उठी, एक बेरहम टीस। वो जब आता तो मुन्नी खाना तैयार करके रखती, लपक कर लोटे में पानी निकाल कर देती। उसके सामने इतनी तंगी नहीं थी, रूखा सूखा सही, लेकिन दोनों वक्त भरपेट मिल जाया करता था। फिर रात में पुआल के बिस्तर में मोटी चादर तले का उलू ही सुख। पता नहीं वो अब इस दुनिया में है भी या नहीं। उसकी मौत की इत्तला देने के लिए किसी के पास शायद कोई पता न था, मगर जब उसके पास था बहुत खुश था। जब दिल में टीस उठती है, वो ये याद करके तसल्ली देती है खुद को कि उसने बड़ी खुश व खुर्रम जिंदगी बसर की। मुन्नी ने उसे भरपूर सुख दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसे जब बेटे की याद आती है तो वो उसकी यादों में एक मिठास पाती है, एक तमानियत कि जिंदगी के आखिरी 2-2.5 दिनों में उसे कुछ अच्छा खाने को मिला था, फल मिले थे। ऐसा ना हुआ होता तो उसकी यादें सिर्फ कलेजा फाड़ती, कलेजे पर कोई फाहा न रखती। वो आज भी लोट लोट कर रोती होती। आपका सर सहला दूं? नींद नहीं आ रही है ना? उसने चाय का आखिरी घूंट लेकर खाली गिलास रखते हुए कहा। तुम खुद सो जाके, सवेरे सवेरे मछली लाने निकल पड़ोगी। जाओ यहाँ से, उन्होंने कदरे डपट कर कहा। ये अब भी मेरे बारे में सोच रहे हैं। मुन्नी कुछ देर तजब्जुब के आलम में खड़ी रही, फिर कुछ छिपटियां तसले में डालकर अंदर जाकर बच्चों के साथ गुड़ी मुड़ी होकर गुदड़ी में घुस गई। अपनी कथरी तो उसने उन पर डाल दी थी। यहाँ एक गुदड़ी में 4 नफर हो गए थे। बच्चों को ढकने की कोशिश में वो खुद बार बार खुल जाती। कोई 2 बजे ठंड के शदीद एहसास से वो पूरी तरह जाग गई। हवा कुछ ऐसे शाय शाय कर रही थी जैसे हजारों भुतनियां अपने घाघरे सरसराती गंगा पर से गुजर रही हों, या फिर किनारे जलती चिताओं से उठी ना आसूदा रूहें। गंगा माँ के शोर में भी कुछ नाराजगी थी, जैसे दुआबे के मैदानों में उतरने के बाद भी वो पहाड़ी ढलानों से गुजर रही हों। तेज तुंद गजबनाक, कभी न डरने वाली मुन्नी उस वक्त कुछ खौफजदा हो उठी। किस चीज़ से, ये खुद उसकी समझ में नहीं आया। सांप अमरूद के पत्तों में दुबका खुद ही डरा बैठा था, और ओसारे में एक बहुत ही नेक पाकीज़ा इंसान सोया हुआ था। फिर उसे किस चीज़ का डर था? वो कुछ बेचैन सी उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई।
ان کی سانسوں کے زیر و بم اور ہلکے خراٹے گہری نیند کے غماز تھے۔ کچھ لمحوں بعد وہ وہیں بیٹھ گئی۔ تسلے کی آگ بجھ کر بہت سی راکھ چھوڑ گئی تھی، لیکن راکھ کے اندر انگارے تھے اور راکھ گرم تھی۔ اس نے ایک ٹہنی سے اسے کریدا تو چنگاریاں اڑیں۔ کچھ دیر تک وہ اپنی کثرت استعمال سے پتلی پڑتی ساری کے پلو سے خود کو لپیٹ لپیٹ کر کچھ سوچتی رہی۔ پھر دھیرے دھیرے سے ان کی بغل میں سرک آئی۔ سخت محنت سے گٹھا ہوا 28 سالہ جوان جسم کمان کی طرح تنا اور پھر چراغ کی طرح لو دینے لگا۔ آدم کے ساتھ حوا کا تخلیق کیا جانا کچھ ایسا بے مقصد تو نہ تھا۔ مالک، جانے بغیر دنیا مت چھوڑیے گا، آتما بھٹکے گی۔ یہ سکھ بھوگیے نہ بھوگیے، جان تو لیجیے ایک بار۔ ان کی آنکھ کھل گئی۔ چمکیلی سیاہ آنکھوں والی روہو مچھلی جیسی وہ لامبی چھریری گٹھی ہوئی سڈول عورت ان کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑی تھی۔ چاروں طرف گھنٹیاں بج رہی تھیں، ٹن 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 ٹن، خطرے کی، مصیبت کی اور کسی انہونی پیشن گوئی کی، موسیقی سے لبریز لیکن ڈراؤنی، اور پورا جسم طوفان کی زد میں آئی ناؤ کی طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ مہاتما بدھ ویسے تو اہنسا کے پجاری تھے، لیکن کوئی کشکول میں گوشت ڈال دیتا تو کھا لیتے۔ لیکن کیا جب مار نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو بھیجا تو وہ انہیں شکست نہیں دے سکے تھے؟ کیا انہوں نے اپنی خواہشوں پر مکمل قابو نہیں پا لیا تھا؟ میں مہاتما نہیں ہوں، میں بدھ بھی نہیں ہوں۔ مجھے عرفان کہاں حاصل ہوا ہے؟ عرفان کی تلاش میں تو میں نکلا بھی نہیں ہوں۔ ہاں، اگر بنی نوع انسان کی خدمت سے عرفان ملتا ہے تو شاید کبھی مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ اور کیا سوچتے تھے کن پھٹے جوگی کہ عورت کا سکھ ویسا ہی ہے جیسا آتما کے پرماتما میں ضم ہونے کا سکھ؟ مرنے سے پہلے ایک بار اگر جان لوں کہ یہ ہوتا کیا ہے تو برا کیا ہے۔ میں نے شراب کا سرور جانا ہے، اچھے بھرپیٹ کھانے، گہری نیند، ماں کی گود، عورت کی محبت، ان سب سے آگاہ ہوں۔ صرف اس کا جسم ہی نہیں جانتا۔ شاید میں پوری طرح خود پر قابو نہیں پا سکا ہوں، ورنہ اس یخ رات میں یہ شعلے نہ بھڑکتے۔ اب تک تو دھکا دے کر اس سلسل کرتی مچھلی کو واپس گنگا میں پھینک دیا ہوتا۔ شعلے پہلے بھی کئی مرتبہ بھڑکے تھے، آخر وہ انسان ہی تو تھے، لیکن انہوں نے پھٹکار کے پانی سے انہیں بجھا دیا تھا۔ ہر بار کفارے کے لیے انہوں نے 3 دن لگاتار روزے رکھے تھے، مسلمانوں کے روزوں سے بھی زیادہ سخت روزے۔ مسلمانوں سے زیادہ سخت یوں کہ روزہ کھول کر بھی وہ بھرپیٹ کھانا نہیں کھاتے تھے، کبھی کبھی تو محض ابلے آلو یا کھیرا ککڑی کھا کے رہ جاتے تھے۔ ابھی حال ہی کی تو بات ہے، ان دنوں دیرہ کے اس پار والے گاؤں کی باری تھی۔ وہ ایک بیمار شخص کو اسپتال میں دکھا کر واپس گھر پہنچا رہے تھے۔ وہاں کنویں پر گاؤں میں بیاہ کر آئی نئی بہو سنندا کھڑی تھی۔ پانی نکالنے کے لیے اس نے ایک پیر خوب آگے بڑھا کر جسم کو تان رکھا تھا۔ سنہری پکے گندم جیسی جلد والے ستھرے سڈول پیر پر اس کا واحد زیور چاندی کی پائل بہت ہی بھلی لگ رہی تھی۔ بالٹی کھینچتے ہوئے سنندا کے پورے جسم میں ارتعاش تھا۔ لگتا تھا ماں باپ کے گھر وہ کنویں سے پانی نکالنے کی عادی نہیں رہی تھی۔ اس کی ساڑی جسم سے سرک سرک گئی تھی، گدبدہ، قدرے بھاری، گداز جسم بلاؤز میں سے چھلکا چھلکا پڑ رہا تھا۔ ان کی نظریں اس کے خوبصورت پیر پر ذرا کی ذرا رکیں اور پھر سرسر کرتی سیدھی گردن تک پہنچ گئیں۔ سنندا کے جسم کا ارتعاش ان کے اپنے جسم میں منتقل ہو گیا۔ انہوں نے خود پر لعنت بھیجتے ہوئے نظریں ہٹائیں، لیکن وہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ نظریں جتنی دیر ٹھہری تھیں وہ وقفہ مناسب سے بہت زیادہ تھا، اور جو وقفہ گزرا تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ وہ نظریں محض خدا کی ایک حسین تخلیق کی ستائش کرتی نظریں نہیں تھیں، وہ ایک مرد کی نظریں تھیں جو ایک عورت کی ستائش کر رہی تھی۔ انہوں نے خود پر کفارہ واجب کیا، کیونکہ ان کا ضمیر ان سے جو سوال کر رہا تھا اس کے لیے ان کے پاس خاطر خواہ جواب نہیں تھا۔ مچھلی نے اپنی کالی چمکیلی کاجل بھری آنکھوں سے انہیں پھر دیکھا۔ ترشنا لے کر دنیا سے مت جاؤ سنیاسی، جان لو کہ تم کیا نہیں جانتے۔ یہ تسلی بھی کر لو کہ جس نفس کو تم نے قابو میں کیا ہے وہ بڑا بے لگام منہ زور گھوڑا ہے۔ بعد میں اپنی پیٹھ ٹھوکتے رہنا، مگر ایک بار، صرف ایک بار۔ اس لمحے نے مزید کچھ سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ ان پر حملہ کر بیٹھا، جیسے نیپال میں برف پگھلنے کے بعد طغیانی پر آئی بے بذات گنڈک خونخوار ہو کر طاقتور گنگا پر چڑھ دوڑتی ہے، اور گنگا اپنی تمام تر غضبناکی کے باوجود کروٹیں بدل بدل کر اسے اپنے اندر ضم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ جو ہوا وہ کیا تھا، وہ ایک برا خواب تھا یا ایک اچھا خواب۔ بڑی دہشت کے ساتھ ان کی عقل و فہم نے بتایا کہ وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ اور مزید دہشت ناک بات یہ تھی کہ نیند کے جالے صاف ہو جانے کے بعد قلب و ذہن پر سرور کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ جسم ایک پرکیف درد سے ٹوٹ رہا تھا، روح پر کبھی نہ مٹنے والے نشان پڑ گئے تھے۔
उनका कलेजा फटने लगा। सारी रियाजत मिट्टी में मिल गई थी और उन्हें ये अच्छा लग रहा था। मुन्नी उनसे पहले उठ चुकी थी। उस ठंड में कुएं से पानी खींचकर वो नहा चुकी थी और उनके लिए मिट्टी के चूल्हे पर चाय चढ़ा चुकी थी। उसकी सुथरी आंखों में कोई पशेमानी नहीं थी, गुनाह का कोई एहसास नहीं था, बस एक तमानियत थी, एक सुकून था। उसकी महबूब हस्ती उसके दरवाजे पर आई तो उसने उसके किशकोल में वो डाल दिया जो उसके पास था, न उससे कम न उससे ज्यादा। उसने मिट्टी की रकाबी में भूबल में भुनी शकरकंद और अल्मुनियम के गिलास में चाय लाकर रख दी। उन्होंने शकरकंद सरकाकर चाय का गिलास उठा लिया। चाय पीकर वो उठ खड़े हुए। झोपड़ी के दरवाजे पर वो रूबरू हुए। मुन्नी ने हाथ जोड़ दिए थे। अब कभी रुकने को नहीं कहूंगी भगवान, डरिएगा नहीं। बाकी सारी जिंदगी सिर्फ एक वक्त खाना खाकर आज की रात का कफ़ारा अदा करूंगा, उन्होंने धीरे से कहा। मगर तुम्हारा शुक्रगुजार हूं मुन्नी माँ, हमेशा रहूंगा। उन्होंने अचानक झुककर उसके पैर छू लिए। रुकने को कहने की ज़रूरत नहीं होगी, ये इलाका छोड़कर जा रहा हूँ। वो ठंड से सुकड़ी, नम, धुआं देती तारीख सुबह में तेज़ी से गुम हो गए।